Welcome students, myself Sarita is here with a new story from short story section of Tulip series 10. The name of the story is Bholi, written by Khwaja Ahmad Abbas और K.A. अब्बास। अब्बास साहब जाने माने फिल्म डायरेक्टर, हिंदी उर्दू इंग्लिश के लेखक भी रहे। उनकी कहानियाँ गांव के जीवन पर आधारित होती थीं तथा गांव में औरतों के प्रति भेदभाव को दर्शाती हैं। भोली भी एक ऐसी ही छोटी सी बच्ची की कहानी है। भोली का मतलब होता है मासूम, इनोसेंट, जो किसी बीमारी की वजह से मंदबुद्धि और बदसूरत हो जाती है, परंतु टीचर की कड़ी मेहनत और उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन करती है और अंत में उसका कैसा रूप सबके सामने आता है, कहानी पढ़ें और जानें। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she was remained a backward child and came to be known as Bholi, the simpleton. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep poke marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. उसका नाम था सुलेखा। वह बचपन से ही हर कोई उसे भोली कह के बुलाता था, जिसका मतलब है इनोसेंट, मीन्स भोली भाली। भोली अपने पेरेंट्स की, माता पिता की चौथी बेटी थी। उसके पिता गांव के लंबरदार थे। जब वह 10 महीने की थी, वह चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई और शायद उसके दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज, खराब हो गया था, जिससे वह दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गई। इसलिए सभी उसे बुद्धू कहने लगे। जब भोली पैदा हुई, वह सुंदर और खूबसूरत थी। जब वह 2 साल की हुई, उस पर चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बीमारी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी सारी खूबसूरती खत्म यानी गायब हो गई। सिर्फ आँखों को छोड़कर सारा शरीर हमेशा के लिए बदसूरत हो गया। पूरी बॉडी पर, पूरे शरीर पर काले निशान पड़ गए। सुलेखा 5 साल तक बोल ही नहीं सकी, परंतु जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हकलाती थी, जिसके कारण वह बहुत कम बोलती थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons has been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage, had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे 4 बेटियां थीं। भोली सबसे छोटी, यंगेस्ट थी। वह एक संपन्न किसान का घर था और उसके घर खाने पीने की कोई तंगी नहीं थी। भोली को छोड़कर सभी तंदुरुस्त थे। लड़कों को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी मंगला, जिसकी शादी पक्की हो गई थी। उसकी शादी के बाद रामलाल तीसरी बेटी
चंपा की भी शादी के बारे में सोच रहा था। सारी लड़कियां सुंदर थी, उनके लिए रिश्ता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। पर रामलाल को भोली की चिंता थी, क्योंकि ना तो वह बड़ी सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" बोली जब 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया और तहसीलदार को उद्घाटन करना था। उन्होंने रामलाल से कहा कि तुम एक रेवेन्यू अफसर हो, पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हो, इसीलिए तुम्हें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए जिसको देखकर बाकी गांव के लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह की, उससे सलाह मशवरा किया, वह चिल्लाकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? पढ़ी लिखी लड़की से तो कोई शादी नहीं करेगा। ये पुराने ख्यालों के लोगों की धारणा थी। But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Boli to school. As it is, there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense. Let's the teachers at school worry about her. The next day, Ramlal caught Boli by the hand and said, Come with me. I will take you to school. Boli was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. परंतु रामलाल में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तहसीलदार के हुक्म को ना माने। और लास्ट में रामलाल की पत्नी कहती है, मैं बताती हूँ क्या करना है, भोली को स्कूल भेज दो। इससे शायद भोली की शादी का कोई अवसर बन जाए, क्योंकि इसकी ना तो कोई शक्ल है और ना ही इसमें बुद्धि है। स्कूल के टीचर्स अध्यापकों को ही इसकी चिंता करने दो। दूसरे दिन रामलाल भोली का हाथ पकड़ता और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊँगा। भोली डर गई। उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। उसे बस पता था कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी जिसे घर से बाहर ले गए और जाकर बेच दिया गया। ना 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 ना, नो 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 नो, she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? ना 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 ना, भोली हकलाते हुए जोर से बोली और अपने पिता से हाथ छुड़ा लिया। भोली वाकई में बड़ी सादी लड़की थी, जिसको स्कूल की परिभाषा ही मालूम नहीं थी। रामलाल चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या बात है पागल लड़की, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आप भोली को अच्छे साफ कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल की मैडम और बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वे भोली को देखेंगे। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed, and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to take better than her home. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes.
There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे, सिर्फ उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसको पहनने के लिए दिए जाते थे। कोई भी उसके कपड़ों को धोने या ठीक करने की परवाह नहीं करता था, पर आज वह खुशकिस्मत थी, उसको साफ कपड़े दिए जा रहे थे जो उसकी बड़ी बहन को काफ़ी बार धोने के बाद छोटे हो गए थे और अब उसे फिट नहीं आते थे। उसे नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया, उसके उलझे बाल मैटेड हेयर को कंघी की गई। तभी भोली को यकीन हुआ कि उसे जहाँ लेकर जा रहे हैं वह घर से तो अच्छी ही जगह होगी। जब वो स्कूल पहुँची तब बच्चे पहले ही क्लासों में बैठे थे। रामलाल हेड मास्टर को भोली को सौंप देते हैं। अकेले वह बेचारी लड़की आंसू भरी आंखों से इधर उधर देखने लगी। वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में उसी की जैसी लड़कियाँ चौपड़ी मारकर चटाइयों पर बैठी थी और कुछ किताबें पढ़ रही थी और कुछ स्लेट पर लिख रही। हेड मिस्ट्रेस मैडम भोली को एक कमरे के कोने में बैठने को कहती है। भोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Boli could not understand nothing. She looked at the pictures on the walls. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Sildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Boli noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. बोली सही तरीके से ये नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या होता है, पर बोली बड़ी खुश थी क्योंकि वहाँ उसकी उम्र की कई सारी लड़कियाँ थीं। उसे आशा थी कि शायद इनमें से कोई उसकी सहेली बन जाए। एक लेडी टीचर जो कक्षा में थी लड़कियों से बात कर रही थी, पर बोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दीवार पर लगी पिक्चर्स देखने लगी। रंग बिरंगे रंग भोली को आकर्षित कर रहे थे। दीवार पर बना भूरे रंग का घोड़ा बिल्कुल उसी घोड़े की तरह था जिस पर बैठकर तहसीलदार गांव आया था। बकरी की तस्वीर उसके पड़ोस वालों की बकरी की जैसी थी। तोता बिल्कुल आम के बाग में जैसा उसने देखा था वैसा था। गाय उनकी लक्ष्मी की तरह थी। पर अचानक भोली ने देखा कि उसकी टीचर उसकी तरफ देखकर हंस रही है। What's your name? Little one. Bh, bho, bho. She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who, she knew, were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Boli dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. Boli, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Boli got up. Now tell me your name. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? अब उसकी टीचर बड़े प्यार से भोली से पूछती है, तुम्हारा क्या नाम है? भ भो भो। वह उससे ज़्यादा अटक कर बोल ना सकी और वह रोने लगी और आंखों से आंसू गालों के नीचे गिरने लगे। वह अपना सिर झुकाकर कोने में बैठ गई।
उसमें सिर उठाकर उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि वे उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की लास्ट बेल बजी, सारी लड़कियां बाहर भाग गई, पर भोली को वह कोना जहां वह बैठी थी छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसका सिर अभी भी झुका था। वह सुबकती जा रही थी। भोली, टीचर की आवाज़ इतनी नरम और कोमल थी कि उसकी ज़िंदगी में कभी उसे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। ये बात उसके दिल को छू गई। टीचर कहती है, उठो। ये एक कमांड या हुक्म नहीं था, सिर्फ एक दोस्ताना राय थी। भोली उठ गई। अब अपना नाम बताओ, टीचर कहती है। भोली के पसीने छूट जाते हैं। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। क्या उसकी हकलाती जुबान उसे फिर अपमानित करेगी? भोली ये सोचने लगी। For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. Bhi, ha, bho, she began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? भोली nodded. इस दयालु औरत के लिए भोली ने एक बार हिम्मत करने का निश्चय किया। उसकी आवाज़ इतनी सूदिंग यानी ठंडक पहुंचाने वाली थी कि भोली को यकीन था कि वह उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। भो वह अकलाने लगती है। बहुत अच्छे, टीचर भोली का हौसला बढ़ाती है। अब चलो अपना पूरा नाम बताओ। भोली में हिम्मत आ जाती है। भोली। अंत में भोली अपना पूरा नाम बोलने में कामयाब हो जाती है। डर से मुक्त हो जाती है, मानो ये उसके लिए कोई बड़ी उपलब्धि हो। बहुत अच्छे, टीचर प्यार से भोली की पीठ थपथपाती है और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो, तुम भी ऐसे ही बोल सकोगी जैसे सभी बोलते हैं। भोली ने ऊपर देखा, मानो वह कहना चाहती हो, सचमुच? हाँ, ये बहुत आसान है, तुम सिर्फ रोज़ स्कूल आना। क्या तुम आओगी? भोली ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। नो, से इट अलाउड। Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice colored pictures: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early morning tomorrow. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब भोली की टीचर कहती है, नहीं, ज़ोर से कहो। यस। भोली खुद हैरान हो गई, क्या वह इतना कह पाई? मैंने तुमसे नहीं कहा था? टीचर बोली, लो अब ये किताब लो। किताब रंग बिरंगे चित्रों से भरी थी, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, तोता, चीता और लक्ष्मी जैसे गाय की पिक्चर्स थी। हर एक पिक्चर के साथ मोटे मोटे काले अक्षर लिखे थे। 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ लोगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे बड़ी। टीचर कहती है,
और कुछ ही समय बाद तुम गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। तब तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। लोग बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें सुनेंगे और तुम्हें बिना रुके, बिना थोड़ी भी हकलाहट के तुम बोलती जाओगी। समझी? अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। भोली को ऐसा महसूस हुआ मानो सभी घंटियां गांव के मंदिर की एक साथ बज रही हों। सारे स्कूल वाले घर के सामने पेड़ों पर लाल फूल खिल गए हों। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. One night, after dinner, Ramlal said to his wife, "Then, shall I accept Bishambar's proposal?" "Yes, certainly," his wife said. "Boli will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." अब उसके का दिल एक नई आशा और उमंग से धड़कने लगा। अब भोली की दुनिया ही बदल गई थी। समय बीतता गया। छोटा गांव अब एक बड़ा शहर बन चुका था। प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया था। अब एक टिन शेड में सिनेमा हॉल खुल गया था। गांव में सूत काटने वाला कारखाना भी लग गया था और रेलवे स्टेशन पर डाक गाड़ी खड़ी होने लगी थी। एक दिन रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, "तो क्या मैं बिशंबर का शादी प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, जो भोली के लिए आया है?" पत्नी कहती है, "हाँ, क्यों नहीं। भोली बड़ी खुशनसीब होगी जिसे इतना अच्छा और अमीर दूल्हा मिला, जिसकी एक बड़ी दुकान, बड़ा सा घर और कई हजार बैंक में है, और इसके अलावा वह बिना दहेज के विवाह करने को तैयार है। इससे अच्छा हमारी भोली के लिए और क्या होगा?" "That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. So what does it matter?" His wife replied, 45 or 50? It is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. Yes, but I wonder what Bholi will say. What will that witless one say? She is like a dumb cow. ये बात सही है, पर वह जवान नहीं है। तुम्हें पता है, वह तकरीबन मेरी उम्र का है और लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली बीवी में से बच्चे काफ़ी बड़े हैं। तो फिर क्या हुआ? उसकी पत्नी कहती है, 45-50 साल, ये तो ज़्यादा उम्र नहीं है आदमी के लिए। हम खुशनसीब हैं कि वह दूसरे गांव का रहने वाला है और उसे भोली के पोक मार्क्स, यानी जो उसके चेहरे पर काले धब्बे थे, उसका पता नहीं है, और उसकी इंटेलिजेंस, और वह तो एक मंदबुद्धि है, उसका तो दिमाग भी कम है। अगर हम ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेंगे तो भोली के साथ सारी उम्र कोई शादी नहीं करेगा। हाँ, रामलाल कहता है, पर भोली क्या कहेगी? भोली क्या कहेगी? उसकी माँ कहती है, अरे वो तो एक मंदबुद्धि गाय है। Maybe you are right, muttered Rampal. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sisters, who had
come for the occasion were envious of her luck. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." शायद तुम सही हो, ऐसा रामलाल बड़बड़ाता है। घर के दूसरे कोने में एक चारपाई पर भोली जागी हुई लेटी थी, सब कुछ सुन रही थी जो उसके माँ बाप बातें कर रहे थे। बिशंबर नाथ एक अमीर किराने वाला था। वह एक बड़ी मित्रों तथा रिश्तेदारों की पार्टी लेकर शादी करने आया था। फिल्मी गाने की धुन पर बैंड पर नाचते हुए बारात के साथ एक सुसज्जित घोड़े पर दूल्हा बैठा था। रामलाल हद से ज़्यादा खुश था। इस शान शौकत को देखकर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की की इतनी धूमधाम से शादी होगी। भोली की बहनें जो शादी में शामिल थी, भोली से ईर्ष्या करने लगी। जब वह पवित्र घड़ी आई, पंडित ने कहा, दुल्हन को बुलाओ। Bolly, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. Garland the bride, one of his friends, prompted Bishambar Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. "Have you seen her?" said Bishambar to the friend next to him. "She has poke marks on her face." बोली, लाल रंग के जोड़े में सुसज्जित होकर पवित्र अग्नि के पास बैठ गई। दुल्हन को हार पहनाओ, उसके एक मित्र ने बिशंबर को प्रेरित करते हुए कहा। दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल वाली माला ऊपर उठाई तो एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से लाल जोड़े का पल्लू सरका दिया। बिशंबर ने दुल्हन को एक नज़र देख लिया। जयमाला उसके हाथ में ही पकड़ी रह गई। वह स्तब्ध हो गया। दुल्हन ने धीरे धीरे पल्लू नीचे खींच लिया। "क्या तुमने उसे देखा?" बिशंबर ने पास खड़े दोस्त से कहा। "उसके चेहरे पर तो चेचक के निशान यानी पोक मार्क्स के धब्बे हैं." "So what? You are not young either." "Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees." Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. "Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. "No, 5,000, or we go back. Keep your daughter." "Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village." "तो क्या हुआ? तुम भी तो जवान नहीं हो," दोस्त उसे ऐसा कहता है। "हो सकता है, पर अगर मुझे उससे शादी करनी होगी तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने ही होंगे। रामलाल झुककर अपनी इज्जत बचाने के लिए बिशंबर के कदमों में अपनी पगड़ी रख देता है। "मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। ये 2,000 रुपये ले लो। नहीं, पूरे 5,000। नहीं तो बारात वापस जाएगी। तुम अपनी लड़की को अपने घर रखो। कृपया थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर तुम चले जाओगे तो मैं गांव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा।" रामलाल गिड़गिड़ाते हुए कहता है। एक बेबस बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हे के सामने गिड़गिड़ाता है, पर उसे कोई ज़रा भी तरस नहीं आता है। "Then out with 5,000?" Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at bridegroom's feet. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. "Give me the garland," he announced. Once again, the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only contempt. Bishambar raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of light
lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. तो निकालो 5,000 रुपये, विशंबर कहता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। इन बहते हुए आंसुओं के साथ रामलाल अंदर गया और अपनी तिजोरी से नोट निकालकर गिनने लगता है। वह नोटों की गट्ठी दूल्हे के कदमों में रख देता है। अब लालची दूल्हे के चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ गई कि किस तरह उसने जुआ खेला और वो जीत गया। अब दूल्हा जोर से कहता है, जयमाला दो। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा, पर इस बार दुल्हन की आंखें झुकी नहीं थी, वह ऊपर उठी थी, सामने देख रही थी, उसके होने वाले पति की तरफ। इस बार उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत, सिर्फ घृणा। विशंबर जयमाला दुल्हन के गले में पहनाने के लिए ऊपर उठाता है, परंतु उसके पहनाने से पहले भोली ने बिजली की तरह उसके हाथ से जयमाला छीनकर आग में फेंक दी और भोली घूंघट फेंक कर उठ खड़ी हो जाती है। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man. Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. अब भोली कहती है, पिताजी, बड़ी साफ और ऊंची आवाज़ में, और उसके माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार सब भोली की बिना हकलाहट की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाते हैं। पिताजी, अपने पैसे वापस ले जाइए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल हैरान, सरप्राइज्ड हो जाता है। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। बेशर्म, इतनी बदसूरत और इतनी बदतमीज़। न जाने कितने तरह के ताने भोली को सुनने पड़े। भोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Boli turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature? But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? Vishambar Nath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. Boli, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल कहता है, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो? कुछ परिवार की इज्जत का तो ख्याल करो। परिवार की इज्जत की खातिर ही तो मैं इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई। भोली कहती है, परंतु मैं ऐसे नीच, लालची, बुरे आदमी को अपना पति नहीं मान सकती। कितनी बदतमीज़ लड़की है। हम सारे सोचते थे कि ये एक नुकसान ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। भोली उस औरत पर चिल्लाती है, हाँ आंटी, तुम ठीक कह रही हो। तुम सभी सोचते हो मैं एक गूंगी खूंटे से बांधने वाली गाय हूँ, इसलिए तुम मुझे इस निर्दयी के हवाले करना चाहते थे। लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये हकलाती बेवकूफ़ लड़की बोल रही है। तुम कुछ और सुनना चाहते हो? अब विशंबर, भोली का होने वाला पति, अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। बैंड बाजे वाले उलझन में सोचने लगे कि वह पार्टी का एंड था और विदाई का गीत बजाने लगे। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now."
What shall we do with you? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, madam? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece. अब रामलाल मानो जमीन में ही जम गया था। उसका सिर दुख और शर्म से झुक गया था। पवित्र अग्नि धीरे धीरे कम हो रही थी। हर कोई चला गया था। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, अब तुम्हारा क्या होगा? तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे? सुलेखा बड़ी ही धीमी और मजबूत यानी दृढ़ आवाज में बोली, पिताजी चिंता मत करिए, मैं बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूँगी तथा उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सब सीखा है। क्या ये सही है मैडम? क्योंकि उसकी मैडम भी शादी में उपस्थित होती हैं। मैडम सारा ड्रामा एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। हाँ बोली, बिल्कुल ठीक, टीचर उत्तर देती है। टीचर की मुस्कुराती आंखों में संतुष्टि की लौ झलक रही थी, जो एक कलाकार, एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि उसका सर्वश्रेष्ठ काम पूरा हुआ होता देखता है। उसे एक गहरा सुकून मिलता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है, जो कि भोली ने अंत में कर दिखाया। So students, it is clear from the two pictures which shows the drastic change in Bholi's life, and it is only and only due to education. It is rightly said, the only person who is educated is the one who has learned how to learn and change. I hope the lesson is clear to all of you. Thank you.